Hello everyone, welcome to the another class of information and technology. Here we are with these topics that we will cover today. So before we start, let me clear a few things. We were having a live class today and in Zoom, and I was not having very great response. I was expecting more than 100 students, but only 75 to 80 students were able to join. For whatever reason, those who were not able to join, please don't get worried, because we have not covered anything new today. Only the topic which we have already discussed in the last class, those topics were only discussed. And purpose of making this video to maintain the uniformity, because we were already having this particular topic to be discussed today itself in our lesson plan, and somehow I was not able to manage the same topic. So I thought, let's not waste our time, or let's not wait for the next class. Record this video and I can upload it in YouTube, and you can just watch it, and we will be in parallel in all the section. So let's start. And before I start, one more thing I wanted to mention, that during the entire video you may get a kind of noise in the background continuously. Basically these are frogs outside my place, and it's very late night when I'm recording this video. So please avoid that and try to focus what actually I'm speaking on different topic. So I have already written what we will cover in this particular video. These are the topic that we are supposed to cover. हम लोगों ने देखा कि वर्ड प्रोसेसर पैकेज क्या है, हम लोगों ने देखा वर्ड प्रोसेसर का पर्पस क्या है, किस तरीके से अलग अलग उसको यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, लाइक एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, spelling, grammar check, navigation, then we have graphics, then we have OLE. So these are different features we have in the form of word processor. But what next? उसके बाद जो टॉपिक्स है उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. So the next thing that we have, writer window. When we talk about writer window, we are talking about the interface that we get in the screen. जैसे आपका राइटर का एप्लीकेशन को आप सिस्टम पे ऑन करते हो, तो आपका राइटर का विंडो जो ओपन होता है, जो उसका प्लेटफॉर्म दिखता है, वो किस तरीके से दिखता है. तो नॉर्मली आप किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को इस तरह का स्टार्ट करते हो, तो आप देखोगे उसके विंडो को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको लेबलिंग करके कि विच पार्ट इज नोन विथ विच पर्टिकुलर नेम. सो इन योर बुक, इन पेज नंबर 134, in page number 134 you have a diagram or a printed window of writer with labeling of each and every component. कौन सा टाइटल बार है, कौन सा मेन्यू बार है, कौन सा टूल बार है, कौन सा वर्किंग विंडो है, कौन सा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, कौन सा वर्टिकल स्क्रॉल बार है. ठीक है, तो ये सभी चीजें आप ऑलरेडी इन सभी चीजों से फेमिलियर हो कि वो किस तरह से दिखता है, उनको किन किन नामों से जानते हैं. या इट इज पॉसिबल दैट यू मे नॉट be very much familiar with the name of the components, but you have used then and there all these components. इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इनके components क्या क्या हैं. They are document window and the actual area where you are working. ठीक है, जो वर्क स्पेस है आपका. Then we have title bar on the very top. जो भी डॉक्यूमेंट होता है सबसे टॉप पे टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो सबसे टॉप पे होता है किसी भी एप्लीकेशन पे, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो. Then we have minimize, maximize and close button. जो राइट साइड पे जो आपका कंट्रोल बटन होता है, 3 बटन, मिनिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का एंड क्लोज करने का. Then we have menu bar. This is something very common in more or less all application. जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, इंसर्ट हो गया, इस तरह की चीजें जो आपका मेन्यूज के फॉर्म में पॉपअप करती रहती है, या टाइटल बार के ठीक नीचे जो दिखती है आपको. So menu bar display the different options that is available in the application. Then we have standard toolbar. This is something, listen, there are two type of toolbar in more or less all application. One is standard toolbar, one is formatting toolbar. Standard toolbar, which is common in nature, which is kind of available in all the applications. ठीक है, जैसे कि फॉन्ट साइज को चेंज करना, उनका स्टाइल चेंज करना, उनका कलर चेंज करना, अलाइनमेंट सेट करना, बुलेट्स वगैरह इंसर्ट करना, ये आपको नॉर्मल आपको हर एप्लीकेशंस में मिलेंगे, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो. और फॉर्मेटिंग टूल बार डिपेंड करता है आप किस तरह का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसके एप्लीकेशंस के नेचर के हिसाब से फॉर्मेटिंग टूल बार का फीचर्स या उसका नाम चेंज होता है. ठीक है,
आप फोटोशॉप यूज करोगे तो फॉर्मेटिंग टूल बार कुछ और मिलेगा, एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार कुछ और मिलेगा, पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग टूल बार कुछ और मिलेगा. So this is what we have. Then we have a ruler. A ruler is basically a kind of scale kind of values जहाँ पर आप डॉट 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 बहुत सारे वैल्यू इस तरह से स्केल का ही एक लेआउट आपको मिलेगा जिससे आप पेज के मेजरमेंट्स को मेजर कर सकते हो. स्टेटस बार जो आपका लेफ्ट के बॉटम पे मिलता है जो नॉर्मली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है कि उस डॉक्यूमेंट पे कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है, ये सब कुछ. ठीक है. स्क्रॉल बार नॉर्मली दो तरह का होता है, जो टॉप से बॉटम लाने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार, डॉक्यूमेंट का लेफ्ट से राइट स्विच करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. ठीक है. दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल. देन वी हैव प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज बटन. दिस इज समथिंग दैट वी हैव कि जैसे मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट है आपका, पेज 1 2 3 4, तो 1 के बगल आपको उसी विंडो में एक बटन मिलेगा जिसको क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. एक प्रीवियस का बटन मिलेगा जिसको क्लिक करने से आप लास्ट पेज पे जाएंगे यानी प्रीवियस पेज पे जाएंगे. तो प्रीवियस और नेक्स्ट पेज के लिए आपको दो बटन मिलते हैं एक्स्ट्रा इन राइटर विंडो. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन राइटर विंडो कि उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को अच्छे से पता एक्सप्लेन किया जाता है. नाउ दिस टॉपिक वर्किंग विथ राइटर, ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है. कैसे राइटर पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को डिफरेंट नेम से सेव करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को रीनेम करते हैं. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो नॉर्मली हर एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिलेंगे. इनको कैसे यूज करते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दीज स्टेप्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. व्हाट आई हैव प्लान, आई विल मेक ए प्रॉपर वीडियो इन माई कंप्यूटर लैपटॉप while doing all these things, and I will have a screen recording of the same and I will upload a different video for that. I hope you got my point. ये सारी टॉपिक्स को मैं अलग से करके दिखाऊंगा, करते हुए स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको वो अलग से वीडियोस का मैं बना दूंगा. ऑल दीज स्टेप बेस्ड वीडियोस आपको वर्बली फिर टाइम पास होगा वो. ओके. यहां से लेकर आपका कंटिन्यूसली जा रहा है पेज नंबर 139 तक. सारे टॉपिक्स आपके स्टेप बेस्ड है. नेक्स्ट टॉपिक जो देखिए, अनडू एंड रीडू. ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप बहुत बार सुनते होंगे, लेकिन जब टेक्निकली इनको डिफाइन करने की जरूरत होती है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो. अनडू इज बेसिकली टू रिवर्स द लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्शन. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए आपने अभी लिखा माई नेम इज, सपोज जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, माई नेम इज सुरेश. आपने लिखा माई नेम इज सुरेश, फुल स्टॉप दे दिया. ठीक है. अब आपको उसको माई नेम इज सुरेश किया. आप जैसे कंट्रोल जेड दबाओगे तो जो लास्ट टाइप कैरेक्टर था वो मिट जाएगा, यानी आपका माई नेम इज ही तक आएगा, सुरेश हट जाएगा. अब आप वहां पर सुरेश के जगह पर आपने टाइप कर दिया रमेश, माई नेम इज रमेश, तो वो रमेश आ गया. अगर आप फिर से रमेश टाइप करोगे, फिर से अगर आप कंट्रोल जेड टाइप करोगे तो फिर से ब्लैंक हो जाएगा. ठीक है. और फिर से और एक बार कंट्रोल जेड टाइप करोगे तो फिर से वो सुरेश पे आ जाएगा. लेकिन अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस कर दोगे यानी रीडू ऑप्शन प्रेस कर दोगे तो फिर से वो रमेश पे आ जाएगा. मैं उसको अगेन फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. अनडू का मतलब है कि लास्ट एग्जीक्यूटेड ऑप्शन को रिवर्स करना. ठीक है. लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्शन को रिवर्स नहीं, सॉरी, कॉल करना. ठीक है. आपने जो लास्ट एग्जीक्यूटेड ऑप्शन को जो भी एक्शन आपने एग्जीक्यूट किया था उसको कॉल करना, दैट इज अनडू. अनडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड. और रीडू का मतलब है टू रिवर्स द एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय अनडू. व्हेन वी डिफाइन द रीडू वी से इट रिवर्स द एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय अनडू. इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई. तो इसको आप फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं विथ एन एग्जांपल. फिर बता रहा हूं डिफाइन जब करने की जरूरत पड़े तो वी से अनडू इज बेसिकली टू कॉल बैक द लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्शन. ठीक है. आपने जो लास्ट एक्शन टाइप किया था तो आपने मान लीजिए एक पैराग्राफ टाइप किया, माई नेम इज रमेश, और माई नेम इज सुरेश, आई लिव इन रांची. आपने इतना टाइप किया. तो आप अगर कंट्रोल प्लस जेड करोगे तो आपका जो लास्ट टाइप आपने जो टाइप किया, ठीक है, आपने जो लास्ट टाइप किया वो हट जाएगा.
इसको मैं MS पेंट के थ्रू समझाता हूँ। आई थिंक यू ऑल हैव वर्कड इन MS पेंट, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने एक MS पेंट में ड्राइंग किया जो काफी कॉमन है, सबको को कुछ समझ नहीं समझ में आता है, तो एक माउंटेन, sun getting rise from the one corner, there are multiple trees, grass and everything। तो आपने ड्रॉ कर लिया। आपने मान लीजिए कि आपने सन का जो सर्कुलर शेप है उसमें आपने येलो कलर इंसर्ट किया, वो एक लास्ट एक्शन है। कंट्रोल Z दबाया तो वो व्हाइट हो जाएगा। ब्लैंक था सर्कुलर शेप सन का, उसमें आपने येलो डाला है और ठीक आपने कंट्रोल Z दबा दिया तो वो येलो से क्या हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, अगर आप फिर से कंट्रोल प्लस Y दबा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, येलो। तो कंट्रोल Z दबाए यानी अंडू दबाए तो क्या हुआ कि येलो के पहले जो था वो आ गया, क्या था, व्हाइट। तो व्हाइट आ गया उस सन के सर्कुलर शेप में। ठीक है, और रीडू जब दबाएंगे, रीडू का काम क्या है, टू रिवर्स द एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय अंडू। अंडू ने क्या किया था, येलो को व्हाइट कर दिया, उसी के एक्शन को रिवर्स करने का काम करेगा रीडू। वो क्या कर देगा, फिर से जो पहले था उसके पहले उसको ले आएगा, यानी येलो आ जाएगा। अगर आपको फिर से अभी भी समझ में नहीं आया, ट्राई समथिंग, आई थिंक मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट, फिर भी आप ट्राई कीजिए अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कंट्रोल Z से क्या हो रहा है और कंट्रोल Y से क्या हो रहा है। फिर से बता रहा हूं, कंट्रोल Z इज फॉर अंडू, कंट्रोल Y इज फॉर रीडू। ठीक है, देन वी हैव नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नाम से काफी ऑब्वियस है, काफी क्लियर है। दोज कैरेक्टर हु आर गेटिंग टाइप्ड बट दे आर नॉट गेटिंग डिस्प्लेड इन द आउटपुट। मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है आपके सिस्टम पे, आपके कीबोर्ड के, जिनको आप यूज करते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग प्रिंटेड व्हाइल द पेपर इज गेटिंग प्रिंटेड। मैंने आप मान लीजिए एक टाइप किया, माय नेम इज सुरेश, माय के बाद आपने स्पेस दिया, नेम के बाद स्पेस दिया, इज के बाद स्पेस दिया, उसके बाद फुल स्टॉप दिया, आपने इंटर मारा। नेक्स्ट लाइन पे आप टाइप कर रहे हैं आई लिव इन रांची, तो इंटर प्रेस किया आपने। तो आपने यहाँ पर दो तरह के नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का यूज किया, ब्लैंक स्पेस एंड एंटर। और एक नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है दैट इज टैब। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर हु आर हैविंग वेरी स्पेसिफिक डिफाइंड एक्शन but they are not visible when we are printing them in a paper. Normally there are three type of non-printing character we will see. One is tab, one is space and one is enter. I think one more is there, I will check and I will let you know. Tab का non-printing character इस तरीके से एरो के फॉर्म पे डिस्प्ले होता है, स्पेस डॉट के फॉर्म पे डिस्प्ले होता है, एंटर इस तरह के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। आप बुक में भी देख सकते हैं। कैसे पता चलेगा ये कैसे इस तरह के फॉर्म में डिस्प्ले होता है, आप अपने सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस में जाओ, सेटिंग्स में, जैसे MS वर्ड अगर यूज कर रहे हो तो ऑफिस बटन जो लेफ्ट के टॉप पे होता है उस पे जाओ, वर्ड ऑप्शन पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे से आपको बॉटम पे, यानी अगर यहाँ पर ऑफिस बटन है तो यहाँ जैसे क्लिक करोगे आपको वर्ड ऑप्शन मिलेगा, वहां पर सेटिंग में मिलेगा डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। उसको जैसे आप ऑन कर दोगे यू विल हैव ऑल दिस कैरेक्टर्स। सो दिस इज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है हमारे डे टू डे लाइफ में, लेकिन कभी डॉक्यूमेंटेशन के प्रिंट निकालने के पहले या फॉर्मेटिंग करते हैं बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहां पर उनको समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ उनको प्रॉब्लम है, या फिर उनका फॉर्मेटिंग में कहीं पर वैलिडेशन करना हो, यानी उनको एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे वहां पर ब्लैंक स्पेस है या टैब का यूज किया गया है, तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर से इजीली समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मेरा ब्लैंक स्पेस है, यानी डॉट 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 दिखेगा, अगर एरो है यानी टैब का यूज किया गया है। ठीक है, तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर which is not getting printed in a paper, which is not getting displayed when we are printing any document, but they are always there in a document while we are using different character like tab, like blank space, like enter. This is what we have to be covered. We were supposed to cover in today's class, but somehow we are not able to make it. So this is what we have. इसके बाद जो है आपका, जो अगर आप बुक देखेंगे, एक टॉपिक है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें
ग्रामर चेक कैसे होता है, स्पेलिंग चेक कैसे होता है, डिक्शनरी में वर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, थ्रेजर क्या है, या फिर इग्नोर ऑल का ऑप्शन क्या है, या आपका ऐड का ऑप्शन क्या है, चेंज का ऑप्शन, चेंज ऑल का ऑप्शन, ये सारे कुछ इसमें अच्छे से बताया गया है। इसको भी मैं उसी वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज क्लास। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसको यूट्यूब में अपलोड करूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या गूगल क्लासरूम में इसका लिंक में भी ऐड कर दूंगा मटेरियल पे। तो आप क्लास स्ट्रीम पे गूगल क्लासरूम में भी इसका आप कोई भी डाउट तो क्लियर कर सकते हो क्लास स्ट्रीम के थ्रू। जो असाइनमेंट्स है, आज के क्लास में जो असाइनमेंट मैं देने वाला था, मैं वो इसी टॉपिक का इसी टॉपिक को कंप्लीट करने का वेट कर रहा था। देन थॉट आई कि आफ्टर दिस ओनली आई विल गिव द असाइनमेंट इन द गूगल क्लासरूम। तो असाइनमेंट भी आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। प्लीज डू चेक एंड डू अकॉर्डिंगली। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, स्टे हैप्पी।